Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. I want to tell you two things we should avoid while writing article. The first is spelling mistakes. Don't do spelling mistakes because this creates very bad impact on teacher. And you can improve this by writing a lot. So prepare your topics by writing only. Make notes and do writing again and again. And number two, I want to tell you, we should avoid grammar errors. Don't do grammar errors. This also creates very bad impression. We must know how to frame a sentence. Our sentence should be correct. So these two things generally we have to remember while writing in the exam. Before writing article, make rough ideas in your mind and write them somewhere and then start writing. Okay. And second point I want to tell you, if you write quotation or some statement, this can bring extra marks for you. So this can be a good idea. And next thing I want to tell you, mostly there are only two kinds of articles, two kinds of topic. One is a topic regarding problems like global warming, problem like pollution, corruption. So in these type of topics there are mainly two things: causes, इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं, एंड सेकंड थिंग इफेक्ट, इनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी लाइफ में, ये हम लिख सकते हैं. बिगनिंग में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ही लिखेंगे एंड फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे ही लिखेंगे. एंड सेकंड टाइप टॉपिक्स आर वेरी नॉर्मल टॉपिक like mobile phone, use of internet, television. So these types of topic, they have two things: we have to tell advantages of them and we have to tell disadvantages of them. फ़ायदे बताना है मोबाइल फ़ोन के या टीवी के, या नुकसान बताना है इंटरनेट के, फ़ोन के या टीवी के. तो इस तरह से बाकी इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे ही लिखेंगे एंड कंक्लूड हम करेंगे ही करेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, वी शुड हैव three main things in our mind while writing article. First of all, about introduction we must know, and we must know how to write introduction of some topic. And second main thing is middle part, how we are going to write middle part of the article. And finally we must know how to conclude an article while giving suggestions and telling remedies, right? We have to conclude that. And next thing is, most of the sentences in an article, they are in present form. They are in the first form of the verb. Okay, so present information, present form of sentences we will use mostly in our articles. And as I have told you before, conclusion means suggestions, remedies, उपचार क्या हो सकते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं, राइट.
So we have to write all these things. And lastly, I want to tell you, use short, simple, and proper sentences. And your sentences and your thoughts should be in proper order. So if you practice on all these things, definitely your article will be one of the best articles. Okay. So thank you very much. यू आर अनुज और अनुजा, आपका नाम अनुज या अनुजा है. इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे. वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है. राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड के डिक्लाइनिंग रेशियो पर, घटते हुए रेशियो पर, इन 150 to 200 वर्ड्स. 150 to 200 वर्ड्स लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड जो हैं उनकी घटती हुई संख्या. राइट साइड में हम डैश करके नाम लिखेंगे, जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम अनुज. उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, गर्ल्स ऑल्सो हैव इक्वल राइट टू लिव. लड़कियों को भी बराबर का अधिकार है जीने का. कोटेशन और स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो हम टीचर को मजबूर करते हैं कि वो हमको मार्क्स दे. इट इज़ अ ग्रेट आयरनी, ये बड़े दुख की बात है, दैट इन अ कंट्री, कि एक ऐसे देश में वेयर वुमन आर वर्शिप्ड, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, फॉर पावर एंड एनर्जी, उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा के लिए, दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन. लेकिन आज उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है. देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द रेशियो, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो लगातार नीचे आ रहा है. द बर्थ ऑफ अ सन इज अ कॉज ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग. एक बच्चे का, लड़के का जन्म जो हो जाता है वो बड़ा कारण बनता है फॉर ग्रेट रिजॉइसिंग. बड़ी खुशी मनाई जाती है विद ड्रमिंग, ढोल बजाए जाते हैं, सिंगिंग, नाच गाना किया जाता है, एंड पब्लिक प्रोक्लेमेशन, और बहुत जलसा मनता है. बट दैट ऑफ अ गर्ल, लेकिन एक लड़की का जन्म जो है, इज़ एन ओकेज़न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये निराशा का विषय बन जाता है, और इंडिफरेंस या फिर उदासीनता का अवसर बन जाता है. ये सोच है हमारे समाज की. दिस इज़ द थॉट ऑफ आवर सोसाइटी. वी आर लिविंग सच टाइप ऑफ सोसाइटी. द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो मेन कॉज जो है लड़कियों की संख्या घटने का वो है मेल न्यूट्रिशन एंड डिसीजेस, कि जो कुपोषण होता है या बीमारियां होती हैं वुमन, महिलाओं में, विच आर ईदर नॉट ट्रीटेड, जिनका या तो इलाज नहीं होता और ट्रीटेड इनएडिक्वेटली, या फिर आधा अधूरा इलाज होता है. द गर्ल्स आर किल्ड इवन बिफोर देयर बर्थ, और वजह यह है कि लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है. द प्रैक्टिस ऑफ प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन, ये जो पहले ही लड़का है या लड़की है ये पता किया जाता है, हैड स्प्रेड रैपिडली, ये बात रैपिडली फैली है, इन ऑल कास्ट एंड ग्रुप्स, सभी तरह की जातियों में और ग्रुप्स में ये चलन बड़ा है. रीजन, रिलीजन एंड कास्ट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर मोर्टेलिटी रेट्स. अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, इन सब चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है महिलाओं की मृत्यु दर में. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ धर्मों में, कुछ जातियों में महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब है, वहाँ उनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है. द लोअर स्टेटस ऑफ वुमन in a particular section of the society
तो जितना लोअर स्टेटस होगा एक महिला का एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, द हायर द नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स आर देयर, उतनी संख्या में वहाँ फीमेल डेथ्स देखी जाती हैं। फिर और क्या वजह हैं? चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह जो होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी, जल्दी जो प्रेगनेंसी हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो कुपोषण होता है, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कमी होती है, सुविधा नहीं मिल पाती, फिज़िकल टॉर्चर जो दिया जाता है महिलाओं को, एंड क्राइम अगेंस्ट वुमन, और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन हरियाणा स्टेट में द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमन इज़ नॉट इक्वल। आदमी और औरत का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इवन बॉयज़ डोंट गेट गर्ल्स टू गेट मैरीड, यहाँ तक कि लड़कों को लड़कियाँ भी नहीं मिलती हैं शादी करने के लिए, ये हालात बन गए हैं। इट इज़ रियली अ क्रूअल जोक, ये वास्तव में एक निर्दयी मजाक है। दैट द मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता की जो माँ है होती है, मनुष्य को जो जन्म देती है, दुनिया जिसकी वजह से चल रही है, इज़ नो वंस चाइल्ड, वो किसी की बच्ची नहीं होती, कोई उसे अपनाने को राजी नहीं होता। द मेकर ऑफ द होम, जो मेकर ऑफ द होम होता है, डजंट हैव अ होम, उसका कोई घर नहीं होता। द क्रिएटर इज डिस्ट्रॉयड मर्सीलेसली, इस क्रिएटर को निर्दयता से ख़त्म कर दिया जाता है। इन द हैंड्स ऑफ हर ओन नियर एंड डियर वंस, और वो भी उसके अपनों के द्वारा। इवन द बॉम ऑफ हर मदर, यहाँ तक कि उसकी माँ का जो कोख है, इज़ नॉट अ सेफ होम फॉर हर, वो भी उसके लिए सुरक्षित घर नहीं है। एज शी इज़ क्रूअली टर्मिनेटेड, क्योंकि वहाँ से भी उसे निर्दयतापूर्वक निकाल फेंक दिया जाता है। बाय हर सेवियर्स, उसके अपने सेवियर्स के द्वारा। और वो सेवियर्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। पीएम मोदी हैज़ गिवन अ स्लोगन, पीएम मोदी ने एक स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यू आर राजेश और राजेश्वरी, आपका नाम राजेश या राजेश्वरी है। यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन डीजनरेशन ऑफ मोरल एथिक्स इन टुडेज सोसाइटी। आज के समाज में जो नैतिक मूल्यों में कमी हो रही है उसको लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ हेडिंग, डीजनरेशन ऑफ मोरल एथिक्स इन टुडेज सोसाइटी। नैतिक मूल्यों की कमी आज के समाज में, क्वेश्चन से ही मिल जाता है ये हेडिंग। तो इसको हमें लिखना है, राइट हैंड साइड में हम डैश करके राइटर का नाम लिख देंगे राजेश। फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और टीचर को मजबूर करेंगे हमें अच्छे मार्क्स देने के लिए। मोरल वैल्यूज मेक अ मैन अ रियल मैन, नैतिक मूल्य एक आदमी को वास्तविक आदमी बनाते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट इन टूडेज वर्ल्ड, कि आज की दुनिया में देर आर नो वैल्यूज़ अमंग द पीपल, लोगों के अंदर वैल्यूज़ नहीं है। इट इज़ डिप्रेसिंग, ये बहुत ही निराशाजनक है, टू सी द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का न्यूज़पेपर देखना, टू विटनेस, देखने को मिलता है वेरियस मर्डर्स, बहुत सारे मर्डर एंड रेप केसेस, ये सब देखने को मिलता है। पीपल आर जस्ट फुलफिलिंग देयर डिजायर्स एंड नीड्स, लोग बस अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बस इस सब में ही बिजी हैं। दे फॉरगेट देयर वैल्यूज़, वो अपनी वैल्यूज़ भूल जाते हैं, एंड ड्यूटीज़, कर्तव्य भूल जाते हैं, टुवर्ड सोसाइटी एंड कंट्री, समाज के प्रति, देश के प्रति। इफ़ दे सी एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, यदि रोड पर वो कोई एक्सीडेंट देखते हैं ना, नोबडी वॉन्ट्स टू टच द इंजर्ड पर्सन,
कोई भी घायल व्यक्ति को छूना नहीं चाहता है। दे जस्ट मेक वीडियो फ्रॉम देयर फोन। वो अपने फ़ोन से बस वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं एंड डोंट हेल्प नहीं करते। तो ये हाल है इन मॉडर्न जनरेशन। आज के जनरेशन में चिल्ड्रन लर्न बैड हैबिट्स। बच्चे बुरी आदतें सीखते हैं एंड दे फाइंड नथिंग रॉन्ग इन दैम। और उन्हें उनमें कुछ गलत भी नज़र नहीं आता। पीपुल हैव बिकम सेल्फिश। लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर प्रॉफिट। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैनी पीपल डोंट लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स। कई लोग तो हैं जो अपने बूढ़े माता पिता की भी देखभाल नहीं करते एंड सेंड देम टू ओल्ड एज होम्स। और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। द नीड ऑफ द आवर इज़, तो आज की जो ज़रूरत है, टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, कि हम मोरल वैल्यूज़ पैदा करें अमंग अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पुराने समय में, पीपल हैड मोरल वैल्यूज़। लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज़ थी। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। उन्होंने एक सुखी और संतुष्ट जीवन बिताया। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट, स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये सब सिखाया जाना चाहिए। दे शुड बी टॉट, उन्हें सिखाया जाना चाहिए दैट सम डेफिनेट एम इज़ वेरी नेसेसरी इन लाइफ, कि कुछ निश्चित उद्देश्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट हियर टू ओनली ईट, ड्रिंक एंड डाई। वी आर नॉट हियर for that only. They should be taught moral values. उन्हें moral values सिखाई जानी चाहिए। They should be taught humanity is supreme. उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि मानवता सबसे पहले है। They should be taught, उन्हें सिखाया जाना चाहिए sharing and caring. शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाया जाना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ should be given in schools, home and colleges. मोरल वैल्यूज़ दी जानी चाहिए स्कूल में, घर पर, कॉलेज में, सब जगह। यू आर सीता और सुरेश, आपका नाम सीता या सुरेश है। यू बिलीव दैट ऑल लिविंग बींग्स, आपको विश्वास है कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं, हैव इक्वल राइट, उन्हें बराबर का अधिकार है टू लिव, जीने का, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। एंड मैन हैज़ नो राइट, और आदमी को कोई अधिकार नहीं है टू एनस्लेव द एनिमल्स, आदमियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो जानवरों को एनस्लेव करें, उन्हें गुलाम बनाएं, उनके साथ बुरा बर्ताव करें। यू फील स्ट्रांगली वेरी बैड, आपको बहुत बुरा फील होता है व्हेन यू सी पीपल बीइंग क्रूअल टू एनिमल्स, जब आप देखते हो कि लोग जानवरों के प्रति निर्दयी हो रहे हैं, क्रूअल हो रहे हैं। राइट एन आर्टिकल, आप आर्टिकल लिखो ऑन क्रूअलिटी टू एनिमल्स, क्रूअलिटी टू एनिमल्स पर, इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, 150 to 200 वर्ड्स के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग लिखेंगे, और वो हेडिंग हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। क्रूअलिटी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति निर्दयता। राइट साइड में डैश करके राइटर का नाम लिखेंगे, सुरेश। इफ, अब कोटेशन लिखेंगे एक, इफ एनिमल्स आर देयर द वर्ल्ड इज देयर, अगर जानवर हैं तो संसार है। इफ देयर आर नो एनिमल्स देयर विल बी नो वर्ल्ड, अगर जानवर नहीं होंगे तो ये दुनिया भी नहीं होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम टीचर को मजबूर कर पाएँ हमें अच्छे मार्क्स देने के लिए, अपने आर्टिकल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आइए देखते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स, सभी जानवर, सभी मनुष्य जो हैं, हैव इक्वल राइट टू लिव फ्रीली,
उनको बराबर का अधिकार है, मनुष्यों को भी जानवरों को भी बराबर का अधिकार है फ्रीली रहने का ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। दे लिव इन देयर नेचुरल एटमॉस्फेयर, वो अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एनिमल्स आर हार्मलेस क्रीचर्स, एनिमल्स जो होते हैं वो हार्मलेस प्राणी होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड क्रिएटेड बाय गॉड, और उन्हें भी ईश्वर ने ही क्रिएट किया है। दे बिलीव इन हार्मनी एंड पीस, वो तो शांति सुकून में भरोसा करते हैं। बट मैन आउट ऑफ हिज सेल्फिशनेस, लेकिन आदमी अपने स्वार्थ के कारण, ग्रीड लालच के कारण, एंड विट और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हैज़ बीन किलिंग दैम, उनको मार रहा है। समटाइम्स फॉर प्लेजर, कभी सिर्फ खुशी के लिए, एंड समटाइम्स फॉर फूड, और कभी भोजन के लिए। मैन टेम्स दैम फॉर सर्विंग हिज नीड्स, आदमी उन्हें पालता है, जानवरों को, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ही पेट्स दैम फॉर प्लॉइंग हिज फार्म्स, वह उन्हें पालता है अपने खेतों को जुतवाने के लिए। गेटिंग मिल्क, दूध पाने के लिए। एंड गेटिंग मीट फॉर फूड, और भोजन के लिए, मीट पाने के लिए। एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जानवरों का प्रयोग तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी किया जाता है ऑन देम, उनके ऊपर। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च की फील्ड में, दीज इनोसेंट एनिमल्स गो थ्रू सच टॉर्चर, ये मासूम जानवर इस तरह के टॉर्चर से गुजरते हैं, क्रूअलिटी, निर्दयता से गुजरते हैं, एंड पेन से गुजरते हैं, विच दे कैन नॉट इवन एक्सप्रेस, जिसे वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर, और इसी तरह से बर्ड्स एंड सम एनिमल्स आर पुट इन केजेस, बर्ड्स को, कुछ जानवरों को केजेस में रखा जाता है, पिंजड़ों में रखा जाता है। एंड कैप्ट इन चेन्स, और उन्हें चेन में रखा जाता है, जंजीरों में। इन ऑर्डर टू सेल दैम, उन्हें बेचने के लिए एज पेट्स, पालतू जानवरों के रूप में। बर्ड्स और एनिमल्स फील हैप्पी, पक्षी या जानवर खुश रहते हैं व्हेन दे आर फ्री, जब वो फ्री होते हैं, इन देयर नेचुरल एटमॉस्फेयर, अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में। देन बीइंग इन गोल्डन केजेस और सिल्वर चेन्स, तो वो सोने के पिंजड़ों में या फिर चांदी की जंजीरों में रहने की तुलना में अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा खुश रहते हैं। एनिमल्स टू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स, जानवरों की भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं। दे कैन फील पेन ऑफ एनी सॉर्ट, उन्हें भी किसी भी प्रकार का पेन फील होता है। वी शुड बी सेंसिटिव अबाउट दैम, हमें उनके बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी काइंड टू एनिमल्स, पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जानवरों के प्रति कैसे दयालु बनना है। एनिमल प्रोटेक्शन लॉ, और जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉ है शुड बी एनफोर्स्ड, उसे और ज़्यादा कड़ा बना देना चाहिए। एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूअलिटी टू एनिमल्स, और वो लोग जो जिम्मेदार हैं जानवरों के प्रति निर्दयता के लिए, शुड बी पनिश्ड अंडर द लॉ, इस लॉ के अंडर ऐसे लोगों को पनिश किया जाना चाहिए।